پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر بنانے کا سفر 650 کلومیٹر تک مار کرنے والے شاہین 1 میزائل کا کامیاب تجربہ ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق شاہین 1 میزائل ہر قسم کے وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ میزائل تجربے کا مقصد آرمی اسٹریٹجک فورس کمانڈ کی تیاریوں کا جائزہ لینا تھا۔ خیبر پختونخوا کے شہریوں کے لیے بڑی خوشخبری، سفر ہوگا اب مزید آسان۔ وزیر اعظم عمران خان آج ہزارہ موٹر وے فیز 2 کا افتتاح کریں گے۔ فیز 2 شاہ مقصود سے مانسہرہ تک 62 کلومیٹر پر مشتمل ہے۔ ایبٹ آباد سے اسلام آباد کا فاصلہ 1.5 گھنٹے میں طے ہوگا۔ مسلم لیگ نون کی جانب سے ہزارہ موٹر وے کے متعلق بینرز آویزاں، بینرز پر نواز شریف کے حق میں نعرے تحریر۔ وزیر اعظم عمران خان سے بابر اعوان کی ملاقات، لاہور ہائی کورٹ کے نواز شریف سے متعلق فیصلے پر مشاورت۔ ذرائع کے مطابق کل وفاقی کابینہ کے اجلاس میں عدالتی فیصلے کا جائزہ لیا جائے گا۔ فیصلے کے خلاف اپیل کرنی ہے یا نہیں طے کیا جائے گا۔ وزیر اعظم سے معاون خصوصی زلفی بخاری کی بھی ملاقات، وزارت اوورسیز سے متعلق امور زیر غور آئے۔ وفاقی حکومت کو ایک اور بڑا دھچکا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے ابرار الحق کی بطور چیئرمین ہلال احمر تعیناتی منتقل کر دی۔ آئندہ سماعت تک ابرار الحق کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن معطل رہے گا۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے فریقین کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے 29 نومبر تک جواب طلب کر لیا۔ مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، گڈ گورننس نہیں ہے، عمران خان اس پہ اب کام کر رہا ہے۔ فضل الرحمان صاحب کی غلط فہمی دور ہو چکی ہے اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے۔ جو روز روز بیماری کھیل رہے ہیں، جائیں منگل کو صحت یاب ہو کے آئیں، ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ مہنگائی اور بے روزگاری ہے، گڈ گورننس بھی نہیں، شیخ رشید کا اعتراف۔ کہا مولانا کو غلط فہمی ہے تو دور کر لیں، کافلیق عمران خان کے ساتھ ہے۔ یہ جو بیماری کھیل رہے ہیں، لندن جائیں، صحت یاب ہو کر آئیں۔ خورشید شاہ کے سوا تمام لوگ پلی بارگیننگ پر ہیں۔ خورشید شاہ اور حمزہ شہباز بری طرح پھنسے ہوئے ہیں۔ نواز شریف کا نام بدستور ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل۔ ذرائع کے مطابق قانون کے تحت نام ای سی ایل میں شامل رہے گا۔ صرف ایک بار بیرون ملک جانے کی اجازت ملی ہے۔ نواز شریف عدالتی احکامات دکھا کر باہر جا سکیں گے۔ ایئر ایمبولینس کل پاکستان پہنچے گی۔ نواز شریف کل ہی علاج کے لیے بیرون ملک روانہ ہو جائیں گے۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں شہباز شریف اور ڈاکٹر عدنان نواز شریف کے ہمراہ جائیں گے۔ نواز شریف کو اسٹیرائڈز کی ہائی ڈوز دینے کا سلسلہ جاری ہے۔ ڈاکٹر عدنان کا کہنا ہے کہ ایئر ایمبولینس میں آئی سی یو اور آپریشن تھیٹر کی سہولت موجود ہے۔ پلان بی کے تحت جے یو آئی فے کے مختلف شہروں میں دھرنے، جیکب آباد میں قومی شاہراہ بند، نوشہرہ میں دھرنا، راولپنڈی پشاور روڈ بلاک، کنکوٹ میں دھرنا 5ویں روز بھی جاری۔ لاہور میں امامیہ کالونی پھاٹک بھی دھرنا دیا جائے گا۔ فواد چودھری کہتے ہیں سڑکوں پر گالیاں کھا کر جے یو آئی فی لیڈران مطمئن نظر آ رہے ہیں۔ بہاولپور کے علاقے یزبان میں پاکستانی سرحد پار کرنے والے 2 بھارتی شہری گرفتار۔ پولیس کے مطابق حیدرآباد دکن کا رہائشی شانت وائندم سافٹ ویئر انجینئر، جبکہ دوسرا شخص وری لال اس کا ساتھی ہے۔ پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔
सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने बीजेपी रहनुमा का बयान जिल्लत अमेज करार दे दिया। कहा, मकबूजा कश्मीर की खवातीन की हालत का तसव्वुर करें जहां ऐसे लोग इस्तिस्ना के साथ ताकत का इस्तेमाल करते हैं। फिरदौस आशिक़बान बोली, भारतीय फौजी बीजेपी के कारिंदे बन चुके हैं। इखलाक सियारी और फिस्तारियत से भरपूर ये सोच मोदी के नाज़ीज़्म का नाकाबिल तरदीद सबूत है। मिशाल मलिक कहती हैं, RSS और हिंदुत्व फिस्ताई सोच बेनकाब होने लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को स्टील मिल्स की ज़मीन फरोख्त करने से रोक दिया। जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स में कहा कि अपनी जेबें भरने के लिए स्टील मिल्स को तबाह किया गया। पाकिस्तान स्टील मिल्स की पैदावार सिफर है, क्यों ना मामले का नोटिस ले लें। वज़ारत सनअत व पैदावार के अकाउंट्स मुंजमद करने के हुक्म के खिलाफ हुकूमती दरख्वास्त भी खारिज। कमजोर मईशत ने कराची में 1000 बसें चलाने के मंसूबे को ब्रेक लगा दी। गैर मुल्की कंपनी का मुआहदे के तहत बसें चलाने से इनकार, डॉलर के मुकाबले रुपए की कदर में कमी वजह करार। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध और गैर मुल्की कंपनी के दरमियान मुआहदे के तहत बसें कराची लाई जानी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। 92 न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं यासिर रशीद। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मुल्क में बेरोजगारी है, महंगाई है, गुड गवर्नेंस भी मौजूद नहीं। वफाकी वज़रा भी इस बात का एतराफ़ करने लगे। इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अहमद राना और मैं हूं इशाल सुलेमान। हेडलाइंस आपने जानी, अहम खबर से बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। NRO मांगने वाले अहमकों की जन्नत में रहते हैं, रूल ऑफ लॉ से किसी सूरत पीछे नहीं हटूंगा। वजीर आजम इमरान खान की बाबर अवान से मुलाकात में गुफ्तगू। नवाज शरीफ के ECL केस समेत आईनी, कानूनी और सियासी उमूर पर मुशावरत। मजीद कहा कि इदारे पाकिस्तान को मजबूत रखने के लिए एक पेज पर हैं। मुल्क में इंसाफ का बोलबाला चाहता हूँ। अपने नुमाइंदे फ़हीम अख्तर से मजीद तफसीलात लेंगे। फ़हीम बताएगा, वज़ीर आज़म और बाबर अवान की मुलाकात में किन उमूर पर गुफ्तगू हुई? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान की अपनी रिहाइशगाह पर डॉक्टर बाबर अवान, जबकि जो मुआविन ख़ुसूसी बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं जुल्फ़ बुखारी, उनसे मुलाकातें हुई हैं। और मुलाकात में नवाज शरीफ के ECL केस से जो नाम हटाने से मुताल्लिक़ जो दीगर आइनी और कानूनी अमूर हैं उन पर मुशावरत की गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इन मुलाकातों में कहा कि रूल ऑफ लॉ से किसी सूरत पीछे नहीं हटूंगा। इदारे पाकिस्तान को मजबूत रखने के लिए एक पेज पर हैं और जो NRO मांगने वाले हैं वो अहमकों की जन्नत में रहते हैं। मुल्क में इंसाफ का बोलबाला चाहता हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि इदारों की तमीर नौ और मजबूती के बगैर जो है वो काम नहीं चलेगा, जबकि उनका कहना था कि मीडिया कौम की तालीम और तरबियत का फ़र्ज अदा करे। इसके अलावा वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि एहतसाब हमेशा पहले से तरजीह रही है। करप्शन जो है वो रियासत के लिए दीमक है। इदारों की तामीर नौ और मजबूती के बगैर काम नहीं चलेगा। अवामी रिलीफ के लिए रवाह माह बड़े इकदाम सामने आएंगे, जबकि उनका कहना था कि जो आज़ादी है वो कश्मीरियों की मंजिल है। इस मुलाकात में जो है वो जो नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है, इसके कानूनी पहलुओं पर भी गौर किया गया। और वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि कल काबीना का इजलास होगा, उस फैसले के खिलाफ अपील करनी है या नहीं करनी, इस काबीना के इजलास में फैसला किया जाएगा। बहुत शुक्रिया फ़हीम अख्तर, इस मुताल्लिक़ आपने हमें अपडेट किया। वज़ीर आज़म इमरान खान आज हज़ारा मोटरवे फेज़ 2 का इफ्तिताह करेंगे। इफ्तिताही तकरीब हवेलियां यूनिवर्सिटी कैंपस में होगी। हज़ारा मोटरवे E35 हवेलियां शाह मकसूद इंटरचेंज से मानसहरा तक 62 किलोमीटर तवील सड़क है। इससे एबटाबाद से इस्लामाबाद तक का सफर तकरीबन 1.5 घंटे तक का हो जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान आज हज़ारा मोटरवे फेज़ 2 का इफ्तिताह करेंगे। इफ्तिताही तकरीब हवेलिया यूनिवर्सिटी कैंपस में होगी। हज़ारा मोटरवे E35 हवेलिया शाह मकसूद इंटरचेंज से मानसहरा तक 62 किलोमीटर तवील सड़क है। आज इफ्तिताह के बाद इसे अवाम उन्नास के लिए खोल दिया जाएगा, जिससे सफर में आसानी पैदा होगी। एबटाबाद में हज़ारा मोटरवे का इफ्तिताह होगा और वज़ीर आज़म इमरान खान इसका इफ्तिताह करेंगे। ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल 180 किलोमीटर हज़ारा मोटरवे के 2 हिस्से मुकम्मल हो चुके हैं। नाज़रीन, एबटाबाद में हज़ारा मोटरवे का इफ्तिताह नून लीग का एहतजाज शाहराह कराकरम ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। एहतजाज की क़यादत नून लीगी MPA सरदार औरंगजेब कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज हज़ारा मोटरवे का इफ्तिताह करना है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं आदिल अब्बासी से। आदिल अब्बासी, मोटरवे का इफ्तिताह हो रहा है, नून लीग की क़यादत क्यों एहतजाज पर जारी है? जी, मुस्लिम लीग नून की जानिब से मोटरवे के इफ्तिताह से 2 दिन कबल ही जो है वो शहर को
मियां नवाज शरीफ के बैनर से जो है वो सजा दिया गया था। मुसलमान के जो है इंतजामिया की जानिब से जो है वो मुस्लिम लीग नून के बैनर हटाए गए, जिसके खिलाफ मुस्लिम लीग नून ने शदीद एहतजाजी मुजाहरा किया है, जिसकी क़यादत मुस्लिम लीग नून के एमपी और अंग्रेज उठा कर रहे हैं, जिनका ये कहना है कि हज़ारा मोटर का वे का इफ्तिताह जो है वो 2 दफ़ा हो चुका है और ये साबका वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ का मनसूबा था, जबकि इमरान खान और परवेज खटक जो है वो इस मनसूबे की मुखालफत करते रहे, जबकि हमारे बैनर फाड़ दिए गए हैं, जिसके खिलाफ कारकुनों के अंदर शदीद इश्तिआल पाया जाता है, जिन इंतजामिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होती और हमारे बैनर उतारने पर मुकदमा दर्ज नहीं होता, वो उस वक्त तक जो है वो सड़क रेशम पर धरना देंगे। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आदिल अब्बासी इस हवाले से अपडेट करने के लिए। आपको बताएं कि तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का ये कहना है कि कौम की दुआओं की बदौलत कायद नून लीग नवाज शरीफ मंगल को इलाज की गर्ज से बैरून मुल्क रवाना होंगे। नवाज शरीफ के साथ उनके भाई शहबाज शरीफ और ज़ाती मौलवी डॉक्टर अदनान भी रवाना होंगे। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ अदालत के अहकामात दिखाकर बाहर जा सकेंगे। लाहौर से मियां शाहिद नदीम की ये रिपोर्ट देखिए। नवाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी का मामला। तर्जुमान नून लीग के मुताबिक डॉक्टरों की जानिब से नवाज शरीफ का तफसीली तिब्बी मुआयना किया गया। डॉक्टरों ने बैरून मुल्क इलाज के लिए रवानगी के सिलसिले में नवाज शरीफ की तिब्बी अलामात का जायजा लिया। मरियम औरंगजेब के मुताबिक नवाज शरीफ को स्टेरॉइड्स की हाई डोज देने का सिलसिला जारी है ताकि प्लेटलेट्स की मिकदार सफर के दौरान मतलूबा सतह पर रहे। स्टेरॉइड्स और अद्वियात के ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल से होने वाले साइड इफेक्ट्स को भी कंट्रोल में लाने की कोशिशें जारी हैं। ज़राए के मुताबिक बैरून मुल्क इलाज की गर्ज से जाने वाले नवाज शरीफ का नाम बदस्तूर एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल रहेगा और मियां नवाज शरीफ अदालत के अहकामात दिखाकर बाहर जा सकेंगे। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ को सिर्फ एक मरतबा बैरून मुल्क जाने की इजाजत मिली है, जबकि अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अभी तक एयर एम्बुलेंस की आमद की इतला नहीं मिली। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में नवाज शरीफ के ज़ाती मौलवी डॉक्टर अदनान का कहना था कि एयर एम्बुलेंस में ICU और ऑपरेशन थिएटर की सहूलत भी है, जबकि डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स का अमला भी नवाज शरीफ के हमरा सफर करेगा। कैमरामैन इमरान भट्ट और साथी रिपोर्टर बुरहानुद्दीन के साथ मियां शाहिद नदीम, 92 न्यूज़, लाहौर। नवाज शरीफ की वतन वापसी तवालत इख्तियार कर सकती है। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ चंद रोज लंदन की हाल स्ट्रीट के क्लिनिक में ज़ेरे इलाज रहेंगे। नवाज शरीफ मुकम्मल इलाज के लिए बोस्टन के मास जनरल अस्पताल में दाखिल होंगे। नवाज शरीफ का अमेरिका में क़याम तवील होगा। तिब्बी माहिरीन ये कहते हैं कि नवाज शरीफ को इलाज के लिए 6 से 7 माह लग सकते हैं। नवाज शरीफ की वतन वापसी तवालत इख्तियार कर सकती है। उधर वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद नवाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने से मुतल्लिक़ अदालती फैसले के खिलाफ अपील के मुखालिफ निकले हैं। साथ ही मुल्क में महंगाई और हेड गवर्नर्स का एतराफ़ भी कर लिया है। ये भी दावा किया है कि इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। साजिद शेख की इसी पर यह रिपोर्ट देखिए। रावलपिंडी के सरकारी कॉलेज में स्टूडेंट कौंसिल की तकरीबी हल्फ बर्दारी। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद ज़माना तालिब इल्मी की यादों से लेकर सियासत तक खुलकर बोले। नवाज शरीफ की बीमारी के मामले पर वफाकी हुकूमत और मुल्जिम को मशवरे भी दिए। बिल्कुल नहीं जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, ना जाएंगे। एक आदमी बीमार है, उसको बाहर जाने दें, उस पर सियासत ना करें और वो शख्स भी अब ज़्यादा सियासत ना करे, ये ना हो कि फिल्म उल्टी चलनी शुरू हो जाए। वफाकी वजीर ने काबीना में रद्दोबदल बारे लाइल्मी का इजहार किया, लेकिन मुल्क में बेरोजगारी और महंगाई को तस्लीम किया। मुझे नहीं मालूम, मेरी खान साहब से 2 दिन हुए, मुलाकात नहीं हुई, कल होगी इंशाल्लाह। मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ, महंगाई है, बेरोजगारी है, गुड गवर्नेंस नहीं है। इमरान खान इस पे अब काम कर रहा है, शब रोज़ मेहनत कर रहा है और इस पे काबू करेंगे। अगर काबू करेंगे तभी हम लोगों में इज्जत पाएंगे। वजीर रेलवे का कहना था कि जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की गलत फहमी दूर हो चुकी, उनके साथ अब कोई नहीं। करप्शन केसेस बारे बताया कि खुर्शीद शाह के अलावा सब प्ली बारगेन के लिए तैयार हो गए। साजिद शेख, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान का प्लान बी। GT रोड से लाहौर के दाखिली रास्ते पर धरना दे दिया गया। JUI कारकुनों ने इमामिया कॉलोनी फाटक ब्लॉक कर दिया है। धरने के बायस GT रोड पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग चुकी हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं खावर मुगल से। खावर मुगल, ये बताइएगा कि धरना दिए हुए कितनी देर हो चुकी है? इंतजामिया से कोई शख्स मुज़ाकरात के लिए पहुंचा और ट्रैफिक की रवानी में किस कदम मुश्किलात का सामना है?
बिल्कुल जमीयत उलमा इस्लाम पे का जो प्लान बी था आज उसके मुताबिक यहाँ पर 1 बजे जो है वो धरना दिया जाना था। अब से कुछ देर कबल यहाँ पर कारकुनान पहुंचे हैं और कुछ लाहौर की क़यादत यहाँ पर पहुंची है और ये मेन सिटी रोड है जो लाहौर और शेखुपुरा रीजन को जो है आपस में मिलाता है, इसको जो है मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। इससे आगे जो है अमामिया कॉलोनी का बड़ा फाटक है, वहां पर जो है वो रेलवे की आमदोरफ्त जो ट्रेन है उनकी आमदोरफ्त तो जारी है, लेकिन जो ये मेन सिटी रोड है इसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। कारकुनान यहाँ पर रोड पर मौजूद हैं और अभी तक के प्लान के मुताबिक धरना जो है वो रात तक जारी रहेगा। हमारी जो इनकी क़यादत से बात हुई है उनका यही कहना है कि अभी तक के प्लान के मुताबिक ये धरना रात तक जारी रहेगा और मुमकिना तौर पर ये धरना जो है वो कल और फिर इससे आगे भी जा सकता है। अगर मुज़ाकरात की बात की जाए तो सुबह से ही यहाँ पर पुलिस अफसरान यहाँ पर मौजूद है, शेखुपुरा और लाहौर दोनों की पुलिस यहाँ पर मौजूद है, लेकिन अभी तक इंतजामिया में से कोई भी मुज़ाकरात करने के लिए यहाँ पर नहीं आया। चूंकि अभी कुछ ही देर हुई है यहाँ पर जो है कारकुनान पहुंचे हैं, अभी मजीद कारकुनान की जो है वो आमद जारी है। तमाम ये जो मुकम्मल रोड है मेन सिटी रोड है जो कि लाहौर और शेखुपुरा का मिलाता है, इसको दोनों अतराफ से जो है एक तरफ जो है वो कारकुनान बैठ गए, जबकि दूसरी जानिब जो है वो ट्रैफिक की आमदोरफ्त तो जारी है लेकिन वो ना होने के बराबर है। तमाम तर जो है वो रोड जो है वो बिल्कुल स्टक होकर रह गया। जी, रोड स्टक होकर रह गया। बहुत शुक्रिया खबर मुगल इस हवाले से अपडेट करने के लिए। और बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। मैनचेस्टर के लॉर्ड मेयर आबिद लतीफ़ चौहान का दौरा जेहलम, डिस्ट्रिक्ट बार जेहलम समेत मुख्तलिफ तकरीबात में खिताब किए। कहते हैं पाकिस्तान ने दुनिया में अमन कायम के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। कायदे आज़म के सुनहरी असूलों ईमान, इत्तेहाद, तंजीम पर अमल करने की ज़रूरत है। मैनचेस्टर के लॉर्ड मेयर आबिद लतीफ़ चौहान ने वफ्द के हमरा जेहलम का दौरा किया, जहां अहले इलाका ने नोट निछावर किए और ढोल की थाप पर मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया। आबिद लतीफ़ चौहान ने डिस्ट्रिक्ट बार के अलावा अपनी और साबिक तहसील नाज़िम गुलाम अहमद जमुद की रहायशगाह पर शहरियों से खिताब किए। उन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम के खिलाफ मैनचेस्टर कौंसिल में करारदाद मंजूर कराई है। कश्मीर की वजह से पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी नुकसानदेह हो सकती है क्योंकि दोनों एटमी मुल्क हैं। खुदा न खास्ता कश्मीर इशू के ऊपर अगर क्योंकि दोनों कंट्रीज एटॉमिक है, अगर वहाँ पे कुछ क्लैश होता है तो ये खित्ता नहीं बल्कि पूरी दुनिया अफेक्ट होगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने दुनिया में अमन कायम करने के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं। कायदे आज़म के सुनहरी उसूलों ईमान, इत्तेहाद, तंजीम पर अमल करने की जरूरत है। पाकिस्तान ने पिछले 20 सालों में दुनिया में अमन कायम करने के लिए अपनी जानों का नजराना दिया, फाइनेंशियली कुर्बानियां दी, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान मकरूस है। मोर देन $100 बिलियन उन्होंने स्पेंड किए ताकि दुनिया में अमन कायम हो सके। तकरीबात में चौधरी आबिद रजा MNA, राजा यावर कयानी MPA समेत मुतअद्दिद रहनुमा शरीक थे। इस मौका पर आबाई गाँव काला गुजरा में सियासी, समाजी, शहरी और ताजिर तंजीमों से ताल्लुक रखने वाले नुमाइंदों के एजाज में खाने का एहतमाम किया गया। मैनचेस्टर में प्रेस क्लब ऑफ पाकिस्तान UK के ज़ेर एहतमाम यौम इकबाल की मुनासबत से एक मुशायरे का एहतमाम किया गया। शुअरा ने खूबसूरत नज़में और गज़लें पेश करके हाज़रीन से खूब दाद वसूल की। तकरीब में इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की अमली ज़िंदगी और फ़िक्री पहलुओं पर रोशनी डाली गई। एहतजाज आसम की ये रिपोर्ट देखिए। मैनचेस्टर में प्रेस क्लब ऑफ पाकिस्तान UK के ज़ेरे एहतमाम मुकामी लाइब्रेरी में यौम इकबाल की मुनासबत से एक मुशायरे का एहतमाम किया गया, जिसकी सदारत प्रेस क्लब के सदर शफीकुल ज़ुमान ने की। इलामा इकबाल की याद मनाने के साथ साथ इस मुशायरे का मकसद पाकिस्तान की अदबी सकाफत को फ़रोग देना और बरतानिया में रहने वाली पाकिस्तानी कम्युनिटी में एहसास तफाखुर, ताल्लुक और उम्मीद को तक़वियत देना था। जहाँ मुझसे दिल मेरा छीना गया, जहाँ पर मैं अक्सर सताया गया, इलाही मेरे सब्र की लाज रखना, वहीं पर दोबारा बुलाया गया। इस मौके पर मुकर्ररीन ने इलामा इकबाल की फिक्र और शायरी के हवाले से सैर हासिल गुफ्तगू की। इनका कहना था इलामा मोहम्मद इकबाल के फलसफा खुदी में नौजवानों के लिए खास पैगाम है। शायर मशरक ने बर सगीर में बसने वाले मुसलमानों पर जुल्म के खिलाफ शायरी के जरिए अपनी आवाज बुलंद की। उन्होंने एक ऐसा ख्वाब देखा जिसकी ताबीर आज हम पाकिस्तान की सूरत में देखते हैं। इलामा इकबाल एक मुफक्कर थे, एक फलसफा रखते थे और उनका एक विजन था। एक शायर होने के नाते भी उनकी बहुत सारी खिदमत है, ख़ास तौर पर उनका सियासत में एक बड़ा नाम था। उनका जो पैगाम है
وہ نوجوانوں کے لیے ہے اور سب کے لیے ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ اپنے کلچر کو پرموٹ کرے. اردو ادب ہو گیا, پنجابی ہو گیا. پریس کلب آف پاکستان مشاہیر کے دن منانے میں اور قومی دن منانے میں پیش رہے گا اور انشاءاللہ ہم ایک کلچر کو یہاں پر روشناس کروا رہے ہیں. علامہ اقبال نے اپنی شاعری سے ہندوستان کے مسلمانوں کو یہ سبق دیا کہ وہ معمولی چیز نہیں ہے اور بے شک تعداد میں کم ہیں لیکن قوت میں کم نہیں ہیں. حضرت علامہ اقبال کا عالمگیر پیغام, ان کا فلسفہ جو خودی کے گرد گھومتا ہے, نوجوانوں کے لیے خاص پیغام ہے. اس میں کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, وہ کیا گردوں تھا کہ تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا. اقبال ڈے کے حوالے سے سب سے پہلے تو بڑی مبارکباد کہ بہت اچھا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اکٹھا کر کے بتائیں کہ جس نے پاکستان کا خواب دیکھا تھا اس کے کیا خیالات تھے. علامہ اقبال کی نسبت کی وجہ سے آج ہم سب یہاں اکٹھے ہوئے ہیں اور جو کلام پڑھا گیا وہ بھی اچھا تھا ماشاءاللہ علامہ اقبال کے حوالے سے. تو اس طرح کا جو پیغام ہے علامہ اقبال کا اس کو عام ہونا چاہیے. بہت ہی خوبصورت مشاعرہ تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ اپنے ہیرو کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اس سے زیادہ بہتر انداز کوئی ہو نہیں سکتا. یہاں پر GCSE میں ان کا سلیبس میں ان کی شاعری کو شامل کیا جائے. اسی طرح سے ہم ینگ لوگوں کو, بچوں کو سکھا سکتے ہیں کہ اردو پڑھیں اور اپنے شاعر مشرق کا پیغام جو شاعری کی صورت میں انہوں نے دیا اس کو جانیں, سمجھیں, عمل کریں. اس موقع پر شعراء کرام کے منفرد اسلوب کلام اور انداز بیاں پر سامعین اش اش کرتے رہے اور داد و تحسین کے دیگر کلمات کے ساتھ ساتھ تالیوں کی گونج نے سما باندھے رکھا. جب خواب میں بھی وہ آتے ہیں تب اپنی زبان کھل پاتی ہے, دل سے باتیں کرتا ہے, آنکھوں سے اشارہ ہوتا. آخر میں یوم اقبال کی مناسبت سے کیک بھی کاٹا گیا. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ اعتزاز اعظم چودھری, 92 نیوز, مانچسٹر. دنیا بھر میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے تقریبات کا سلسلہ جاری ہے. اسی مناسبت سے بھارتی شہر حیدرآباد میں بھی روح پرور محفل سجائی گئی, جس میں سجادہ نشین بغداد شریف شیخ سید ہاشم الدین الگیلانی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. ہے نور سحر چہرے سے تیرے اور شب کی رونق زلفوں سے. جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری امت مسلمہ انتہائی عقیدت اور احترام سے مناتی ہے. ماہ ربیع الاول میں محافل میلاد کا بھرپور اہتمام کیا جاتا ہے. ایسی ہی ایک پرنور محفل سجی بھارتی شہر حیدرآباد میں. روح پرور محفل میں بھارت کے مختلف حصوں سے آئے ہزاروں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریک ہوئے. مہمان خصوصی سجادہ نشین بغداد شریف شیخ سید ہاشم الگیلانی نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روشنی ڈالی. The number one after the kalima of La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, we want to see always he is in the mosque in the first row, praying in the mosque in the first row in the Jum'ah, listening to the Imam Khatib and the Jum'ah namaz, inshallah. That is the Murid al-Salih to the Sayyidina Shaykh Abdul Qadir Jilani. You have to start today from first and number one important, your salah. Subhanallah. اپنے خطاب میں شیخ سید ہاشم الگیلانی نے حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے روشن افکار کو بھی بیان فرمایا. سید ہاشم الگیلانی نے شرکا سے روحانیت، صوفیزم اور باہمی محبت جیسے خوبصورت موضوعات پر بھی روشنی ڈالی.
عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں جلوسوں اور محافل کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ وٹفورڈ جامع مسجد سے 10واں سالانہ جلوس برآمد ہوا، جس میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والہانہ عقیدت دیدنی رہی۔ تفصیلات وسیم کاظمی کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ وٹفورڈ کی مرکزی جامع مسجد سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ میں 10واں سالانہ جلوس برآمد ہوا، جس میں بیرونس ڈورتھی، تھارن ہل، حاجی محمد منیر، زاہد زریں، مولانا قاری سلیم احمد سمیت پاکستانی کمیونٹی کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ مقررین کا کہنا تھا کہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری انسانیت کے لیے اللہ کا پیغام پہنچایا اور رحمت للعالمین بن کر مساوات کا حکم دیا۔ شرکاء نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اپنی محبتوں کا اظہار کچھ یوں کیا۔ Happy birthday first of all to the Prophet Muhammad, peace be upon him and be upon all those who follow his ways. And I'm delighted to say it's a sunny day today, so the sun is shining down on the righteous, and I hope that everybody gets to the end dry. I think what's important about processions like this is that we recognise that it's a very strong symbol, not only to the community but also to the rest of Watford, who are very comfortable that this happens every year. They respect the many faiths in the town, and that's what it's all about. Today for coming to Watford Milad procession. Today is the 10th procession of love for the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Gathered here today at Central Mosque, Watford, and inshallah we're hoping to walk across Watford sharing our joy of love for the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. میلاد جلوس جو جا رہا ہے انشاءاللہ یہ رواں دواں ہے، اس میں ہم جو ہے وہ یہ دوسری جو کمیونٹی ہم ان کو یہ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اسوہ حسنہ پہ عمل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے پھول نشاور کریں۔ میں سب سے پہلے تمام دوستوں کو، مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پہ ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آج کا دن یہ ہمارے لیے بڑا خوشی کا دن ہے۔ آج کا یہ جلوس عشاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے وٹفورڈ سینٹرل مسجد سے روانہ ہو رہے ہیں، اور شہر کی مختلف گلیوں سے ہوتے ہوئے درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے شرکاء نے ہاتھوں میں سبز پرچم اور محبت کے پیغامات پر مبنی پلے کارڈ تھام کر نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فضا کو معطر کیے رکھا۔ جلوس کے اطراف میں سیکیورٹی اور ٹریفک کے نظام کو بہتر رکھنے کے لیے انتظامیہ کے نمائندوں نے خدمات سر انجام دیں۔ وسیم کاظمی، 92 نیوز، لندن۔ ادارہ فیضان اسلام مانچسٹر کے زیر اہتمام مانچسٹر میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں برطانیہ سے جید علماء کرام سمیت نعت خواں حضرات نے شرکت کی۔ تقریب کا مزید احوال اعتزاز آسم چودھری کی اس رپورٹ میں۔ صبح بدا من طلعته واللیل دجا من وفرته اللہ 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 برطانیہ بھر میں عید میلاد النبی کے سلسلے میں تقریبات دینی جوش و خروش سے جاری ہیں۔ ادارہ فیضان اسلام مانچسٹر کے زیر اہتمام عید میلاد النبی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ معروف دینی اور روحانی شخصیت سجادہ نشین دربار عالیہ نیریاں شریف ڈاکٹر پیر نور العارفین صدیقی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر ادارہ فیضان اسلام کے نگران اعلیٰ علامہ غلام ربانی افغانی نے خطاب میں کہا کہ نبی آخر الزماں کی تعلیمات کو من و عن سے اپنے اوپر نافذ کرنا ہوگا
ہوگا ताकि दुनिया व आखिरत में कामयाबी हासिल हो सके। वो जो हमारी अजीम शान काबिल फ़ख्र रिवायात हैं उनसे जुड़े रहकर यूरोप के माशरे में एक बावकार शहरी बनकर ज़िंदगी गुजारना जो जदीद दौर के तकाज़ों से भी आरास्ता हो और अपने कल्चर, अपने तकाज़ों और अपने दीन से भी जुड़ा हुआ हो, ये वो चैलेंज है जिसको हम समझते हैं कि हल करने के लिए ऐसी महफिलों का इनेकाद ज़रूरी है। तहरी तरीक़ा मुहम्मदिया के सरपरस्त अल्लामा अहमद दबाक ने कहा कि रूए ज़मीन में इस्लाम बज़रिया औलिया कराम के हुस्न सलूक से फैला। आज के इस दौर में हमें अपने हुस्न अखलाक से इस्लाम की असल रूह से दूसरी अक़वाम को मुतासिर करना होगा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम से ज़्यादा कामयाब कोई शख्स नहीं गुजरा, तो आपकी वो जो सिफ़ात, वो आदात, वो सोचने का अंदाज़ कोई इनफरादी तौर पर अपनाएगा तो वो कामयाब हो जाएगा। डॉक्टर पीर नूरुल आरफीन ने कहा कि मिलाद मुस्तफ़ा आपस में बाहमी मोहब्बत और इत्तफाक का दर्स देता है। जिस कदर हम इस्लाम से जुड़े रहेंगे इतनी ही दुनिया में इस्लाम की असल रूह मुतारिफ करने में आसानी होगी। का जो मकसद है बुनियादी तौर पर मिलाद का वो ये है कि तमाम आलम को ये जाहिर कराना है कि इस्लाम अमन का दीन है। कॉन्फ्रेंस के आखिर में शुरकाए महफिल ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हदिया दरूद सलाम पेश किया। इस मौका पर पीर डॉक्टर नूरुल आरफीन सदीकी ने खुसूसी दुआ भी की। तमाम उलमा, हाज़रीन और नादखान हज़रात जिस प्यार और मोहब्बत से महफिल को सजा के रखा, इलाहुल आलमीन इस महफिल की बरकत सबको अता फरमाए। कैमरा टीम के हमरा एतजाज़ आसिम चौधरी, 92 न्यूज़, मैनचेस्टर। और बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। स्पेन के शहर बार्सिलोना में कश्मीर तवज्जो चाहता है कि उन्वान से एक सेमिनार का इनेकाद किया गया जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के मुस्लिम अमूर के मशीर पाकिस्तानी निजात साजिद तारड़ मेहमान खसूसी थे। तफसीलात शाहिद अहमद शाहिद की इस रिपोर्ट में देखिए। जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर में लॉकडाउन को 3.5 माह बीत चुके। रैलियां, सेमिनार और एहतजाजी मुजाहिरे आलमी अमन के दावेदारों के ज़मीर को झंझोड़ने में ताहाल कामयाब नहीं हो सके। अमन की कोशिशें भी बारावर साबित नहीं हो रही और कर्फ्यू बदस्तूर नाफिज है, जो इस बात का सबूत है कि कश्मीरियों की आवाज को खामोश नहीं कराया जा सकता। दुनिया भर में मौजूद पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी और इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाली तंजीमें मुस्तकिल सरापा एहतजाज हैं। मजलूम कश्मीरियों के हक में यूरोप से सबसे तवाना आवाज शायद स्पेन के शहर बार्सिलोना से उठी है, जहां कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी ने मुतअद्दिद बड़ी तकरीबात का इनेकाद किया है जिनमें हजारों की तादाद में लोग शरीक होते हैं। इसी सिलसिले में मकामी होटल में कश्मीर तवज्जो चाहता है कि उन्वान से एक सेमिनार का इनेकाद किया गया जिसके मेहमान खुसूसी अमेरिका से आए डोनाल्ड ट्रंप के मुस्लिम अमूर के मुशीर पाकिस्तानी निजात साजिद तारड़ थे, जबकि सदारत कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान अली इमरान चौधरी कर रहे थे। तकरीब में सियासी, समाजी, अदबी और कारोबारी शख्सियात और इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाली तंजीमात और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे बड़ी तादाद में शरीक थे। हाल लोगों से खचाखच भरा हुआ था, जहां तिल धरने को जगह न थी, जो पाकिस्तान जिंदाबाद और कश्मीर के आजादी के नारों से गूंजता रहा। चलेंगे, हम लड़ चलेंगे, कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान जिंदाबाद। कौमी तराना बजाया गया और मुकर्रीन ने एक मरतबा फिर कर्फ्यू खत्म करने और कश्मीरियों को उनके बुनियादी हुकूक दिलवाने के लिए आलमी बरादरी को अपना किरदार अदा करने का मुतालबा दोहराया। साजिद तारड़ का कहना था कि हमें मुत्तहिद और मजबूत होने की जरूरत है। मैं खुद ये चाहता हूँ कि अपनी जिंदगी में मैं लाल चौक जाऊँ और ढल झील देखूँ। मैं पहले सोचता होता था दोगरी कश्मीर में I feel today that in my life, frankly speaking, I have desired to go there to Lal Chowk. I have desired to go to the Dal Jheel. कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान अली इमरान चौधरी का कहना था कि मैं उन बहन भाइयों को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जो एक छोटी स्टेट के होते हुए आपकी रखवाली करते हैं। मेरे आपके भाई बहन सारे हैं, उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि एक छोटी स्टेट के होते हुए वो आपकी रखवाली करते।
تقریب سے ساجد گوندل، راجہ مختار سونی، چودھری عمران چوکر اور عبدالغفار مرحلہ نے بھی خطاب کیا، جبکہ تقریب کے آرگنائزر مزمل وڑائچ، حاجی نوید، سلیمان گوندل، جابر بیگ، فرحان مہر اور علی رشید بٹ نے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ آخر میں کشمیر کی آزادی، پاکستان کی سلامتی، امن و استحکام اور ترقی کے لیے دعائیں مانگی گئیں۔ یہ شعلہ نہ دب جائے، یہ آگ نہ سو جائے، پھر سامنے منزل ہے، ایسا نہ ہو کھو جائے، ہے وقت یہی یارو، جو ہونا ہے ہو جائے، کشمیر کی وادی میں لہرا کے رہو پرچم، ہر ظالم و جابر کا کرتے ہی چلو سرخم۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شاہد احمد شاہد، 92 نیوز، بارسلونا، اسپین۔ متحدہ عرب امارات میں دبئی ایئر شو 2019 کا آغاز، پاکستان سمیت 160 ممالک کی 1300 کمپنیاں اپنے دفاعی ساز و سامان کی نمائش کر رہی ہیں۔ پاکستانی وفاقی وزیر برائے دفاعی پیداوار زبیدہ جلال نے پاکستانی اسٹال کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے 92 نیوز کے نمائندے سید مدثر خوشنود سے خصوصی گفتگو کی۔ ان کا کیا کہنا تھا، آئیے آپ بھی سنیے۔ ایک تو میں سمجھتی ہوں کہ انٹرنیشنلی اینڈ ادروائز ملک میں ایئر فورس از آور پرائڈ۔ سو ہیونگ سیڈ دیٹ، میں سمجھتی ہوں جس طریقے سے انٹرسٹ ہے اسپیسیفکلی ان دی ڈفرینٹ بٹس اینڈ پیسز آپ کہیں، پارٹس کہیں، یا اوور آل جو سپر مشاک ہے یا JF-17 تھنڈر کے، یو کین سی بیکاز اٹس بین پروون دیٹ دی aircrafts and fighter aircrafts are the best in the world. بہت زیادہ انٹرسٹ ہے after the Pulwama incidents. We've proven، جیسے میں کہتی ہوں، یہ وہ جیٹ مطلب فائٹر جیٹس نہیں ہیں which are just made and they have been stagnant, but they've actually proven their worth also. انٹرنیشنلی ایک بہت اچھا رسپانس آ رہا ہے، اور ریکوائرمنٹس پہ بھی مختلف ملکوں کی طرف سے، جس پہ نیچرلی PAC اینڈ ایئر فورس دیم سیلوز آر آلسو ویری مچ سارٹ آف ڈسکشن از گوئنگ آن۔ اس میں تو نیچرلی دس از دا فرسٹ ڈے اینڈ وی اسٹل ہیو 4 days ٹو گو، بٹ ہوپ فلی ان شاء اللہ جس طریقے سے انٹرسٹ ہے، میں سمجھتی ہوں اٹ وڈ بی سبسٹینٹیو۔ اور بلیٹن میں وقت ہوا ایک بریک کا۔ آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے 92 نیوز UK، اور ایکسس کیجیے ہماری ویب سائٹ 92news.tv۔